Hello, welcome everyone. My name is Abhay Verma and we are going to start a new series on the chapter on biology of class 10th, and in that only we are going to take the first chapter of biology in class 10, that is life processes. And so we will gonna start with this series, and apart from it we are also going with the chemistry series on the same YouTube channel, The Pathway. Let's start this chapter. We will divide it into different different parts, so that we can understand the whole chapter in units, units, subunits. So life processes. First of all, the meaning. Life processes. Life processes are all those processes which actually help us to maintain and sustain life. सो मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ मतलब जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा क्या क्या जीने के लिए जरूरत पड़ता है. और हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, ऑक्सीजन लेते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, दैट्स एसेंशियल प्रोसेस. इसके अलावा खाना खाना भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अगर वो नहीं होगा वी कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज बट नॉट लाइक फॉर एवर. तो खाना खाना इज ऑल्सो अ लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, and it comes under nutrition. We will discuss that also. Apart from it, removal of the undigested waste material, that is also a part of life processes. ये सब करते हैं, and we are talking about life processes in this a world is life, so we are talking about only living organism. As we know, the world is made up of living and non-living things. The world is made up of living and non-living things means, but we are going to discuss about the processes that are happening in life and which is actually helping a living organism to maintain life. एक living organism को जीने में जितने भी process मदद करेंगे उन्हीं के बारे में हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. Now coming to the term living and non-living, but who decides actually what is living and what is non-living? कोई there must be some particular reason to say that this thing is living and this thing is non-living. So for that we choose some characteristic which help us to identify something as living and something as non-living. जैसे कि कोई सजीव है लिविंग या कोई निर्जीव है दैट इज नॉन लिविंग. ये हम डिसाइड करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स के बेस पे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एबिलिटी टू मूव, दैट इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस. अगर हमें सबसे पहले किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ का कोई साइन देखना है तो व्हाट वी लुक फॉर, इज देयर एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, क्या वो चीज हल्की सी हिल रही है या कुछ. तो सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिज्म में क्या देखेंगे, दैट एबिलिटी टू मूव, वेदर इट द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मूव और नॉट. अब आप बोलेंगे सर प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे डोंट मूव बट दे शो मूवमेंट. जैसे कि प्लांट्स का लाइट की तरफ मुड़ जाना, किसी प्लांट की स्टेम का लाइट की तरफ बेंड हो जाना, ऑल्दो वो मूवमेंट बहुत स्लो है बट वो भी एक एबिलिटी है मूव करने की. सिमिलरली जैसे कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, आप सबने सुना होगा. इफ यू गोइंग टू टच इट्स लीव्स, वो रिविल्ड कर जाती हैं, एकदम से मुरझा जाती हैं, एंड जैसे ही आप वहां से हाथ डालेंगे वो वापस नॉर्मल शेप में आ जाती हैं. तो that's how it is a defining characteristic of living organism, that is ability to move. Coming to the next, the producing offspring. Producing offspring means the reproduction process in which organism produce young ones similar to themselves. So producing offspring is a characteristic of living organism. Animals में it is quite variable. In plants also they do reproduce asexually as well as sexually. Asexually means where there is only single parent involved, एंड सेक्सुअली जहाँ पे बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. आने वाले चैप्टर्स में हम इनके बारे में भी डीप में पूरा डिस्कस करेंगे, बट नाउ ब्रीफ में आई इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दैट इज गिविंग बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल्स. दिस इज ऑल्सो डन बाय प्लांट एज वेल एज एनिमल. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर characterized by producing offsprings also. Next characteristic is responding and reacting. Responding and reacting, like if someone prick you with a needle, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन ये नहीं होता कि भाई हटाए, आप सडनली क्या करते हैं, अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं. वाई? बिकॉज
दिस इज डन बाय नर्व सेल्स. हमारी बॉडी में नर्व सेल्स प्रेजेंट है विच एक्चुअली ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, one part of the body to another, which actually help us to respond and react, and responding and reacting to what? The external changes which are happening in our surrounding. So this is one more characteristic of living organism, that is responding and reacting. Apart from it, getting rid of the waste matter. As we all know, we urinate, we also attend the call of nature, जिसमें हम अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट? अ पार्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो कि एक्सक्रीशन के फॉर्म में भी हो सकता है एज वेल एज इजेशन के फॉर्म में भी हो सकता है. ये दोनों टर्म क्या कहती हैं, ये हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, टेकिंग फूड टू स्टे अलाइव. टेकिंग फूड टू स्टे अलाइव, as I already discussed in the introduction part, विदाउट फूड मे बी हम कुछ दिन सर्वाइव कर जाएं, एक दो, बट कैन नॉट फॉर एवर. हर किसी को, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम उस ऑर्गेनिज्म को विद नेकेड आई देख पाए चाहे ना देख पाए, बट एवरीवन नीड्स एनर्जी टू मेंटेन देयर लाइफ, टू डू ऑल द एक्टिविटीज, एंड फॉर दैट दे नीड न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे. सो फूड में भी उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सबको फूड लेना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज दे वोंट गेट द एनर्जी. द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टर्निंग द फूड इनटू एनर्जी. नाउ वी ऑल बिलीव दैट हमने बस खाना खाया एंड वी गॉट द एनर्जी, बट बिहाइंड द कर्टेन्स एक और सीन होता है जिसमें खाना खाने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद, हर सेल उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है. इन दैट यूटिलाइजेशन प्रोसेस, जो कि हम ब्रीफ फुली डीप में डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेशन, अपनी आगे आने वाले लेक्चर्स में, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज टर्निंग फूड इनटू एनर्जी. ऑल ऑर्गेनिज्म irrespective of the prokaryotic or eukaryotic cell do this process, which is respiration. So these all are the characteristic of living things which actually help us to define something as living and non living. किसी को सजीव या निर्जीव बताने में जो अंतर के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक, जो मापदंड देखने पड़ते हैं, वो सारे कौन से हैं? ये. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोसेसेस. हमने ये सारे प्रोसेसेस देखे, तो हम इतनी देर से प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट टेक अ लुक ऑफ द नेम. हम उन सबके नाम देख लेते हैं जो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ प्रोसेस में, अपने आप को, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए. लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज सिमिलर टू द पार्ट वेयर वी सेड दैट रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग टू द एक्सटर्नल चेंजेस. बाहर जितने भी सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं, उनसे उनको उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, वो किसका पार्ट है? सेंसिटिविटी का. एंड ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दीज ऑल प्रोसेस आर नोन एज life processes because they help us to sustain and maintain life. Sustaining and maintaining life is actually giving these processes a name, life processes. Now we will discuss about each process. We will majorly discuss 4 processes. First is nutrition, second is respiration, third is transportation, and fourth is excretion. Initially we are going to start with the topic nutrition. Now nutrition is a term which in itself describes it and says the process in which we obtain nutrient, because we already discussed for staying alive we need food, and food gives us nutrients, and this whole process of getting nutrient from the surrounding is known as nutrition. Now living organism need to do this process because they need energy for the growth and maintenance of life. We all grow and we all do a daily activity. We all do a lot of daily activities for which we require energy. So वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी हमें मिलती है इन्हीं न्यूट्रिएंट से जो हम न्यूट्रिशन प्रोसेस में लेते हैं. नाउ ये जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन होता है फूड से, एंड फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स. अब एक टर्म आया न्यूट्रिएंट. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Nutrients are the substances
which we acquire through food and actually gives us energy for the growth and maintenance of the day-to-day activities. So as I mentioned, nutrient is a substance which an organism obtain from its surrounding and use it as a source of energy. एनर्जी के स्रोत के लिए जितने भी पदार्थों की आवश्यकता होती है वो सब किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. सो दैट्स व्हाई, एंड न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. वी ऑल नो, फर्स्ट जब भी हमें जो सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हमें जब भी एनर्जी चाहिए होती है, आप सबने ग्लूकोन डी के बारे में सुना होगा, because glucon D provides instant carbohydrates and carbohydrate is the first source of energy, is the first. अगर हमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो किस सीक्वेंस में यूज करती है एनर्जी, उस सीक्वेंस में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है. प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, मसल, इन सब के लिए जरूरत पड़ता है. फैट्स हमारी बॉडी में, बॉडी फैट जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग फैट्स हमें जरूरत पड़ते हैं. विदाउट फैट actually helps to grow us in a mass. Now there are some sources also. We all know carbohydrate is obtained from banana, milk, protein from pulses as well as fish, chicken, that is non-vegetarian food. Apart from it, fat we obtain it from cooking oil as well as non-veg and few peanuts. You all must have peanuts, मूंगफली, उनसे भी हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं. सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच वी ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. अदर न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो देयर, वो हम आगे चल के कभी जब मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस करेंगे थोड़ा, तब हम पढ़ेंगे. नाउ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन फॉर व्हाट? यूटिलाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी सो दैट वी कैन मेंटेन द डेली लाइफ प्रोसेसेस by an organism is called as nutrition. Now nutrition provides a raw material to sustain life, and what are those raw materials? The nutrients, carbohydrate, protein and fat. Now the ways of obtaining food is different in different organism. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड फूड में खाना लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में खाना लेते हैं. जैसे कि हमें तो ऐसा नहीं है ना कि हम बाहर जाते हैं, मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, खुद बनाते हैं एंड वी टेक इट इन द सॉलिड फॉर्म. बट क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्लांट अपना खाना खुद बना रहा हो, मतलब कहीं उसका किचन हो? ऐसा कुछ नहीं होता. व्हाट हैपन्स इन प्लांट्स, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड दैट वे इज नोन एज autotrophic mode of nutrition. Now ways of obtaining nutrition is known as mode of nutrition, and mode of nutrition according to organism varies, and it is divided majorly into two parts, autotrophic and heterotrophic. Now what is autotrophic? Autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which organism synthesize its food itself, जिसमें ऑर्गेनिज्म को कहीं बाहर से खाना लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बेस पे अपना खाना खुद बना लेता है. दैट्स अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हम सब ने प्रीवियस क्लासेस में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, वो सब किस में आता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. एंड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच actually derive their nutrition from this mode of nutrition are categorized under autotrophs. मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो सब किस में आते हैं? वो उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. नाउ व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड होता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए. नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is divided into three types. Heterotrophic mode of nutrition is divided into three types. Heterotrophic mode of nutrition is divided into three types. One is the parasitic, one is the saprophytic, and one is the holozoic. One is the holozoic. What is parasitic? Parasitic is a mode of nutrition जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना सारा न्यूट्रिएंट किसी और की बॉडी पे रह के डिराइव करता है. इस केस में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, एक होस्ट होता है जिसके ऊपर पैरासाइट सर्वाइव करता है
और दूसरा होता है पैरासाइट, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अगला सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है अपना न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी ऑर्गेनिज्म इस सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम या तो सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, या फिर डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो दे फॉलो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्लियर कर लिया, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकॉइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। लास्ट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में अपना फूड ऑब्टेन करता है, जैसे कि ह्यूमंस और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। उसमें 5 प्रोसेसेस होता है। इसमें क्या क्या स्टेप, आई होप आपको उतना समझ में आया है। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने प्रोसेसेस होते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ढंग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, like the video and share it. Thank you.